A very good morning, dear students. Welcome back to PBN online classes. Today in this class, we will continue our fifth chapter, that is arithmetic progression, and exercise 5.3 from question number 4. In the last videos, we discussed about up to the question number 3. Now we discussed about the sum of n terms of an AP and question number 4. Please open your book. Question number 4. Question number 4 is that how many terms of the AP? The given AP is what? 9, 17, 25 dot and must be taken to give a sum of, जो हमें सम देती है कितना 636. ठीक है. How many terms? It means we have to find the value of terms. Let us to consider the given AP whose terms are n. हमने क्या कंसीडर कर लिया, उसमें कितनी terms होंगी? n terms होंगी. और Sn हमने 636 यानी कि n terms है तो सम n terms का ही होगा ना, that is 636. AP आपको दी है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको Sn जो दिया है वो बेटा 636 है. कितना है? 636. AP आपको दिए इन द गिवन AP A is what 9, D is what 17 minus 9 and that is what 8 and हमें फाइंड करना है. We know that क्या कि सर जो Sn होता है that is what n by 2 2a plus n minus 1 into d. यही तो आपका Sn होता है. क्या होगा? Sn is what 360 n हमें फाइंड करना है 2a. a कितना बेटा आपका 9 प्लस n minus 1 into d. d आपका बेटा 8 है. राइट. तो 636 and that equals to n by 2. this is 18 plus 8n minus 8. 8 को मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या है 636 that equals to n by 2. 18 minus 8 10 plus 8n. 636 is equal to what n by 2. 2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया. this is 5 plus 4n. 2 से 2 n से क्या आएगा 636 and that equals to n 5 plus 4n. n 5 plus 4n. 636 that equals to multiply by n 5n plus 4n square. Changes the sides. उसको तो क्या आएगा ये 4n square plus 5n minus 636 and that equals 0. It should be a what? Quadratic equation. It should be a what? Quadratic equation whose the factors what? The product of these two multiple and sum is what? Plus 5. Choose the two number in such a way that the product of both the number is the multiplication of these two and the sum is what? Plus 5. And this is the question of your quadratic equation. Do yourself and to find the value of n. If n is negative, number is not considered because n is a number. A number never be negative. If it is n is positive, then n to be considered. तो क्या होगा? यहाँ से फैक्टर कीजिए, n की वैल्यू निकालिए. n is the value of the term. Do yourself because it is a question of a quadratic equation and we have to factorize to find the roots or to find the value of n. क्लियर? आपको AP दी थी, उस AP में कुछ टर्म्स होंगी हमें नहीं पता, उनका सम दिया आपको. आपसे पूछा था कि आप उन टर्म्स की वैल्यू बताएं कि वो टर्म्स क्या होंगी, कितनी होंगी, ताकि इनका सम कितना हो जाए 636. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sn is given. Sn is 636. In the given AP A and D are given. To find the format of value of n, we have to use the formula of Sn and that is what n by 2 2a plus n minus 1 into d. Right. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है बेटा आपको द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5. किसी AP की फर्स्ट टर्म किससे लिखते हैं बेटा? a से. वो कितनी है 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45. लास्ट टर्म किससे लिखते हैं? an से और वो कितनी है 45 एंड द सम इज 400. सॉरी द सम इज 400 यानी कि आपको सम दिया है बेटा 400. ठीक है. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस. आप नंबर ऑफ टर्म्स बताइए और कॉमन डिफरेंस बताएं. तो सम जनरली आपने लास्ट टर्म an लिखी है तो ऐसे नहीं होगा. an क्या होता है बेटा आपका? an आपको 45 दिया है. व्हाट इज an? a plus n minus 1 into d and that is what 45. what is a? 5 रखो यहाँ पे. 5 plus n minus 1 into d that is 45. 5 मैं राइट हैंड साइड में भेजूं तो n minus 1 into d प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का कितना बचा 40. इसका मतलब n minus 1 into d कितना हुआ बेटा आपका 40. Sn आपका है ये
Sn क्या होता है, यही होता है Sn दिया कितना आपको 400, देन Sn की वैल्यू मैंने 400 रखी इक्वल्स टू n/2 इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप एक काम कीजिए, n-1 इंटू डी आपके पास है, a आपके पास है, दोनों की वैल्यू पुट कीजिए, n की वैल्यू निकालिए, वो n की यहाँ रखिए, d की आइए और d की यहाँ, और आपके पास चाहिए क्या, d और n तो चाहिए, तो n यहाँ से आएगा और n यहाँ रखने पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, d। शॉर्ट फॉर्मेट है, क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेशन करनी है आपको, राइट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी की फर्स्ट टर्म और उसकी लास्ट टर्म आपको दी है। क्या पूछता है, 17 और 350, यानी कि फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट टर्म उसकी 350 है। आगे क्या दिया है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 9, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, कितनी टर्म होंगे और कितना उनका सम होगा। यानी कि वो जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना आपका, वही है ये, बस ये थोड़ा सा लैंग्वेज में दिया आपको। कैसे है देखिए, फर्स्ट टर्म बोले तो a, यानी कि a आपको दे दिया 17, लास्ट टर्म बोले तो an एंड दैट इज व्हाट 350। अच्छा, कॉमन डिफरेंस d वो आपको 9 दिया है। क्या कह रहा है, n और sn कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का तो बन रहा है, 3 के जो पार्ट्स थे बहुत सारे, वैसा तो बन गया क्या कि बोले सर an को तो मैं लिख सकता हूँ क्या, an इक्वल्स टू व्हाट a प्लस n-1 इंटू d। व्हाट इज an 350, what is a 17 plus what is n find करना है, and what is d, d is given that is 9, substitute the value of a, an and d in an। तो बोला सर ये 350 प्लस 17 इधर ले आओ माइनस 17 and माइनस 1 इंटू व्हाट 9, कितना बचेगा यहाँ से 333, कितना बचेगा बेटा देखो 10 गया 340, 7 गया 333 इक्वल्स टू n-1, मल्टीप्लाई में 9 था इधर ले आओ, डिवाइड में आ जाएगा 9 3 जा 27, 6 3 9 7 जा 63, n-1 37 आया, n कितना आएगा बेटा 38, n कितना आएगा 38। इट मीन आपने n निकाला, Sn चाहिए आपको। Sn क्या होता है आपका n/2 a प्लस l। ये फॉर्मूला क्यों, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म दी हुई है, मेरे पास लास्ट टर्म भी दी हुई है। s n इज व्हाट 38, देन s 38 n/2 38/2 a that is what 70 plus this is what 350, cancel by 19 into how much of this 367, multiply करो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया बेटा आपको वही सब शॉर्टकट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि आपको 22 टर्म का सम निकालना है, यानी कि क्या निकालना है बेटा S22, क्या निकालना है S22। कब, जब ये दिया हो इन विच d आपको 7 दिया है, d कितना दिया है 7, और क्या कह रहा है बेटा 22 टर्म, a22 क्या दिया आपको 49, क्या दिए 149। तो बोला सर a22 को तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस 21d एंड दैट इज 149, a कितना आपका दिया नहीं है, a प्लस 21d रखो 7 149 147, 21 7 जा 147, उधर जाएगा तो 149 माइनस 147, देन a इज व्हाट 2, a आ गया आपके पास, d आपके पास है, n22 है, s22 जी। Sn में Sn क्या होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, आपके पास n है, a है, d है, Sn तो निकालना है, करिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। फिर से आपको क्या निकालना बेटा S51, क्या निकालना है S51, इसका मतलब n कितना दे दिया आपको 51। अच्छा, दूसरी बात उस सेकंड टर्म यानी कि a2 आपको दे दी, ठीक है जो भी है, और बेटा आपको दिए थर्ड टर्म, सेकंड एंड थर्ड टर्म a3 दे दिया आपको, ये 14 है ये 18 है। देखो a2 को क्या लिख सकता हूं मैं a प्लस डी, राइट, और a3 को मैं लिख सकता हूं a प्लस 2d, ये 14 है और ये 18 है। अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा बेटा a और किसकी वैल्यू आएगी d की, n कितना है 51, हमें क्या चाहिए Sn के लिए a n d, a d यहां से आएंगे, n आपको 51 दिया है, डायरेक्ट पुट द वैल्यू ऑफ a and d in Sn to find the sum of first 51 terms, right? Question number 9, if the sum of first 7 terms of an AP, यानी कि आपको फर्स्ट 7 टर्म यानी कि S7 दे दिया, ठीक है, कितना दिया है वो S7 दे दिया बेटा आपको 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म S17 आपको दे दिया
289, राइट। क्या कह रहा है, देन फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। वही बात है, देखो S7 को आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 7/2 2a प्लस n माइनस वन, n कितना 7, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, और साथ में क्या रहेगा d, ये रहा 49, इक्वेशन बनेगी फर्स्ट। S17 17/2 अगेन 2a प्लस 17 माइनस 1 16d एंड दैट इक्वल्स टू 289। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे तो a और d में दो लीनियर इक्वेशन बनेगी, तो वैल्यू किसकी आएगी, a की और d की। क्या पूछा आपसे, सम ऑफ n टर्म पूछा है, यानी कि Sn पूछा है, वही n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसमें सिर्फ a और d की वैल्यू पुट करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में n ही रहेगा, तो आंसर भी किसमें आएगा, n की टर्म्स में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट a1 a2 a3 फॉर्म्स एन ap एंड फाइंड सम ऑफ एक्सटिंग टर्म। देखिए किसी भी आपकी कोई सीक्वेंस दी है, उसकी nth टर्म आपको दे दी और कह रहा है कि ये AP बन रही है, तो कह रहा है कि आप बताइए कि वो AP है और उसकी 15 टर्म का सम निकालिए। देखिए क्या दिया है आपको, 10th क्वेश्चन में बेटा an दिया है, फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं मैं, 3 + 4n। चेक द गिवन सीरीज इन AP और नोट, तो क्या करेंगे, n1 रखेंगे, n1 रखा 3 + 4 × 1 4 4 + 3 7, a2 यानी कि n2 रखा 3 + 4 × 2 4 2 8 8 + 3 11, a3 3 + 4 × 3 4 3 12 + 3 15 एंड सो ऑन। देखिए 7 11 15 इट फॉर्म्स एन AP। क्या बनेगी, AP बनेगी जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 7 और कॉमन डिफरेंस कितना बेटा 4। अच्छा n15 दिया है, आपको S15 चाहिए, क्या चाहिए S15, Sn चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, तो n15 d ये रहा a ये रहा, S15 क्या होगा 15/2 2a, a कितना है 7 प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 इंटू d कितना बेटा 4, क्या होगा ये 2 से कैंसिल नहीं हो पाएगा, 15/2 दिस इज 14 प्लस 14 इंटू 4 56, आप सोल्व कीजिए सम निकालिए। इन द सेम मैनर द सेकंड पार्ट इज आल्सो सेम, व्हाट आपको फिर से an दी है, an में n1 2 3 4 पुट करेंगे, उसके बाद AP बनेगी, AP में a और d आएगा, अगेन टेकिंग द n इज व्हाट 15 एंड फिर से आप कर लेंगे 15 लेंगे, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे सम ऑफ n टर्म्स पर डिपेंडिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज अप टू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।